Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss introduction of statistics in the form of importance of statistics. We already discussed in my first video meaning of statistics in the form of singular sense and plural sense. Let's start. Scope of statistics. Before the starting, we discuss about the meaning of statics again. Statics means क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ ए फैक्ट. कोई भी फैक्ट है, अगर उसको हम डाटा के अंदर प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए स्टैटिक्स. क्योंकि जब भी किसी फैक्ट को हम डाटा के अंदर प्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास कंपेयर करने की पावर आ जाती है. हम उसके आधार पर कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि हमें कौन कौन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम को रिमूव करना चाहिए. तो दैट इज मीन्स statistics is more important for the economics and business and political activities. Everywhere data of statistics require to improve the standard of living. Let's start. What is the scope of statistics? In first, in planning. What is the role of statistics in planning? Very important role. Why? Because without any statistical data, no any proper planning made by statisticians and economists. Because planning is a combination of vision, goal, objectives, strategies, policies. ये जितनी भी चीज़ें हैं, विज़न है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटजी है, ये तभी सक्सेस हो पाएंगी जब इनके डाटा हमारे पास हैं. So statistics have to get necessary information about the planning, which depend upon the analysis of statistical data. Means सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? स्टैटिस्टिक्स डाटा हैं. जब तक किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के हमारे पास स्टैटिस्टिक डाटाज नहीं है तो वी कैन नॉट फ्रेम ए प्लानिंग. ऑल द प्लानिंग्स फ्रेम विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल data. So we can say that statistics is very important when we are plan something for the betterment of people, betterment of life, betterment of institutions, betterment of the country also. So means statistical data is very important. If we talk about the importance of statistics in economics, so all economic problem we can remove only with the help of statistical data. Means task of economists start from the collection of data related to the economic problem like poverty, unemployment. अगर इकोनॉमिस्ट के पास इकोनॉमिक डाटाज हैं पॉवर्टी के, अनएम्प्लॉयमेंट के, देन दे हैव मेक ए गुड पॉलिसीज, मेक ए गुड वर्क ऑन इट टू रिमूव द प्रॉब्लम्स. Statistical analysis are used in solving different economic problems such as consumption, production, distribution, investment, unemployment. Tools like time series, demand analysis, forecasting techniques, all are depend on statistical data. Demand increase है, हमें प्राइस लेवल से डिस्कस करना पड़ेगा. When price increase, demand fall, price fall, demand rise. So that is frame depend on the statistical data. So we can say that we are helpless to improve the economic problem without the statistical data, because quantitative data is important for a statisticians to solve the economic problem. Next is in business. If we talk about the business, no any businessman run their business smoothly without the statistical data, because on the basis of data he or she planned investment in the market. On the basis of data he can analyze the performance of their business. On the basis of data a finance minister take proper decision to implement the tax policies. Means statistical help business to test and make
correct decision about the location of a business, marketing the product, financial resources, all are depend on statistical informations. Without the statistical informations, a business cannot run smoothly. If we talk about the state management, totally depend on the statistical data. A minister give a speech to attract the peoples only with the help of data. If a ministers deliver their speech, if have a data of poverty, unemployment, growth, per capita income, national income, that speech are attract to the opinions, peoples, and to manage the administrations, statistical data is required. In order to set different policies to run economy efficiently or allocating economic resources in various sectors based on different statistical टूल्स कि हमें एग्रीकल्चर के अंदर इतने एफर्ट की ज़रूरत है, सेकेंडरी के लिए हमें इतने फंड की ज़रूरत है, एंड ट्रस्टी साइड के लिए हमें इतने फंड की ज़रूरत है. ऑल आर डिपेंड ऑन स्टैटिस्टिकल डाटा. इंडिया आफ्टर अडॉप्टिंग द 5-year प्लानिंग रिड्यूस द गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा. आज हमने नीति आयोग अडॉप्ट कर लिया है, हमने बॉटम अप्रोच को अडॉप्ट कर लिया है. किसके बेस पर? स्टैटिस्टिक्स के बेस पर कि प्लानिंग कमीशन ने अपना काम बहुत बढ़िया ढंग से किया, लेकिन उसके अंदर बहुत कमियां रहीं. उस कमी को हमने स्टैटिस्टिकल डाटा से आधार पर हमने चेंज कर दिया, नीति आयोग अडॉप्ट कर लिया. तो हम इस कहने का मतलब क्या हुआ कि स्टेट मैनेजमेंट टोटली डिपेंड ऑन दी स्टैटिस्टिकल डाटास. इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ पर हमें स्टैटिक्स हेल्प कर सकती है, हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि विदाउट द स्टैटिस्टिकल डाटास इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिक्स आर हेल्पलेस. अब वेयर स्टैटिक्स डाटास आर हेल्प इकोनॉमिस्ट वो रीड इन दिस टॉपिक. लेट्स स्टार्ट. स्टैटिक्स हैज इमेज एज ए लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स. तो लाइफ लाइन ही है, क्योंकि विदाउट लाइफ लाइन, विदाउट द बैकबोन ए पर्सन इज यूजलेस. तो बैकबोन कौन है? स्टैटिस्टिकल डाटाज है. रीढ़ की हड्डी क्या है? करेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटाज है, जिसके बेस पर इकोनॉमिस्ट डूइंग वेरी वेल इन कंट्रीज. सबसे पहले क्या है? क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स एवरी कंट्री फेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो ग्रोथ रेट. That type of economic problems should be solved only with the help of statistical data. Means first task of economist to collect the data of economic problem, then he make good policies. Unemployment set to 20% of India working population. तो इसके डाटा से क्या हम फ्रेम कर सकते हैं कि where we can क्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लाइक गवर्नमेंट ने नरेगा शुरू किया हुआ है ताकि कि अनस्किल्ड लेवल के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट उसको रिड्यूस किया जाए. गवर्नमेंट क्या है, नई नई कंपनीज़ को इनवाइट कर रही है, MNC कंपनीज इंडिया के अंदर आ रही है ताकि एजुकेटेड पर्सन गेट देयर जॉब. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ से पता लग रहा है? हमारे पास डेटाज हैं. इस डाटा के बेस पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया था. जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के डाटा आ गए तो सेकंड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे हम. इंटर सेक्टरल एंड इंटर टेम्परेल, दो चीज़ें आती हैं. इंटर सेक्टर का मतलब हमने देख लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट है हमारा, कहाँ पर है? तो हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में कितने अनएम्प्लॉयड हैं, सेकेंडरी में कितने हैं, एंड सर्विस सेक्टर में कितने हैं. तीनों को ही क्या है एनालाइज करेंगे. रूरल के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है या अर्बन के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है. इन सभी प्रॉब्लम्स को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें इंटर सेक्टरल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट 20% तो रूरल में है जी, 10% क्या है अर्बन में. तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे कि हमें रूरल के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है, अर्बन के अंदर कम प्रॉब्लम है. अगर हमें लगता है कि रूरल के अंदर कम और रूरल के अंदर ज़्यादा, तो हमें रूरल और अर्बन की पॉलिसीज़ को बनाना पड़ेगा. मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटास वी कैन टेक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटर सेक्टर डाटास रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम. नेक्स्ट, कोज एंड इफेक्ट. कहते हैं किसी भी समस्या के पीछे कोज और इफेक्ट काम करते हैं. तो जो इकोनॉमिस्ट है वो जो डाटा कलेक्ट करता है तो उस डाटा कलेक्ट करने के पीछे क्या है वो कोज और इफेक्ट देखता है कि 20% अगर एम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर
तो उसका जीडीपी पर कैपिटा इनकम पर, नेशनल इनकम पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये सभी चेकिंग कहाँ से होगी, किससे होगी, स्टैटिस्टिकल डाटा से होगी। द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इफेक्ट ऑन मार्केट, इन्फ्लेशन रेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको चेक किया जा सकता है, फिर इसको रिमूव किया जा सकता है। जैसे हमारे पास 3 पॉलिसीज़ हैं, फिजिकल पॉलिसीज़ हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं एंड फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, जिसमें हम इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये किस पर आएगा, स्टैटिस्टिकल डाटा के आधार पर आएगा कि कॉज और इफेक्ट, क्या कॉज है और उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं इकोनॉमी के। तो कॉज और इफेक्ट आएंगे तब क्या है, इकोनॉमिस्ट क्या एनालाइज करता है कि इस कॉज को ख़त्म करेंगे तो इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ये क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। फॉर्मेटिंग पॉलिसी, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फ्रेम करती है वो स्टैटिस्टिकल बेस पर होती है। लास्ट ईयर हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, तो यहाँ पर हम सक्सेस हुए, यहाँ पर हम क्या अनसक्सेस हुए। जहाँ जहाँ हम अनसक्सेस हुए वहाँ पर उन अनसक्सेस को ख़त्म करने के लिए हमने नई पॉलिसियाँ बनाई। जैसे कि सीधा सा एग्जांपल मैंने दिया, प्लानिंग कमीशन से हम नीति आयोग पे आ गए, 5 ईयर प्लानिंग से हम 3 ईयर, 7 ईयर, 15 ईयर के एनालिसिस पे आ गए। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसका फ्रेम क्या है, डे बाय डे चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ ए कंट्री। आज हम नए युग के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो प्लानिंग प्रोसेस को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, जिसे लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब वो अडॉप्ट करेंगे तो और दे गिविंग ए गुड रिजल्ट। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई होगा। मीन्स लोग खरीदने के लिए तैयार हैं जिस रेट पर, और सप्लायर के बेचने के लिए तैयार हैं। तो इकोनॉमिक बैलेंस कब आएगा, जब हमारी पॉलिसियाँ अच्छी होंगी, पीपल उसको एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सारे रूल्स हैं जिसको पीपल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब वो पॉलिसियाँ बढ़िया नहीं हैं, उसको दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि गलत है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए अभी रूम बाकी है। तो मीन्स कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, ऑल आर डिपेंड ऑन स्टैटिस्टिकल टूल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स एज ए कंस्ट्रक्टिंग इकोनॉमिक थ्योरीज। अगर हम स्ट्रक्टिव इकोनॉमी की थ्योरी की बात करते हैं, तो किसी भी थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल वी यूज़ स्टैटिस्टिक्स इन कंज्यूमर थ्योरी ऑफ डिमांड। तो हम क्या करेंगे, 10 बंदों से पूछेंगे कि आपने प्राइस बढ़ने पर अपनी डिमांड पर जो कम हुई है उसका कितना इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि प्राइस और डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशन होता है, और प्राइस और सप्लाई के अंदर क्या है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, हम थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो मीन्स सिंप्लीफिकेशन डाटा चाहिए हमें, प्रोवाइड ए टेक्निक ऑफ कंपैरिजन, हेल्प इन फॉर्मेटिंग पॉलिसीज, हेल्प टू टेस्ट फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंट द इफेक्ट इन ए डेफिनेट फॉर्म एंड स्टडी रिलेशंस, हेल्प इन द फोरकास्टिंग। ये सारी चीज़ें क्या है, किस पर डिपेंड है, स्टैटिस्टिकल डाटा पर डिपेंड है। जब तक हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं होंगे तब तक हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिक्स मेथड आर नॉट सब्सिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। मतलब मीन्स कहना तो क्या है कि सब्सिट्यूट नहीं है, कंप्लीमेंट्री है। स्टैटिस्टिक्स डाटा में भी मिस इनपुट हो सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज स्टैटिस्टिकल डाटा प्रेजेंट बाय द इन्वेस्टिगेटर्स डिपेंड ऑन द पार्शियलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर। इफ इन्वेस्टिगेटर इज नॉट गुड, डाटा इज मिसप्रिंट, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स अपने आप में कुछ नहीं है, दे आर कठपुतली की तरह क्या है, इन्वेस्टिगेटर के हाथ में काम करेगी। इन्वेस्टिगेटर उसको सही काम के लिए भी यूज़ कर सकता है, उसको गलत काम के लिए यूज़ कर सकता है, बट इसमें स्टैटिस्टिकल डाटा का कोई कसूर नहीं है। किसका है फॉल्ट, किसका है, उसको यूज़ करने का है। मैं भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बिल्कुल कर सकते हैं जी, स्टैटिस्टिकल डाटा इन्वॉल्व पर्सनली बायसिस बिल्कुल ला सकता है, तो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर। मैंने पहले कह दिया कि डाटा अपने में कुछ नहीं है, डाटा यूज़ करने वाले पर डिपेंड करता है कि उसने डाटा पॉजिटिव वे में यूज़ किया है या नेगेटिव वे में किया है। इन्फ्लुएंस क्या है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आएगा, बिल्कुल आता है जी। स्टैटिस्टिकल डाटा में मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, बिल्कुल, क्यों है, क्योंकि एक मिट्टी की तरह है डाटा। तो उस मिट्टी से जो कलाकार है वो एक गोस्ट की तस्वीर भी बना सकता है और एक भगवान की बना सकता है। अगर गॉड की बनाएगा तो सारे पूजेंगे, अगर गोस्ट की बनेगी तो उसको पूजेंगे नहीं, उसके गाले भी निकालेंगे। तो स्टैटिस्टिकल डाटा में फेल टू रिवल द एरर कमिटीज, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज डाटा किस वे के अंदर कलेक्ट किया गया है ये भी डिपेंड करता है
कि ये रिजल्ट अच्छे देगा या रिजल्ट गलत देगा। तो मैं सिंपली ये कहना, इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक्स प्रूव एनीथिंग बट इट डिपेंड ऑन द इन्वेस्टिगेटर्स। और इन्वेस्टिगेटर के हाथ में है कि वो स्टैटिक्स के डाटा को किस वे में यूज़ करना चाहता है। वो उसको पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकता है जिसके रिजल्ट बेटर आएंगे, वो उसको नेगेटिव वे में प्रेजेंट कर सकता है जिसके रिजल्ट गलत आएंगे। उसके लिए फ़ायदा होगा, दूसरे के लिए लॉस होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी।